सर परमात्मा ने इतने बच्चों की माँ बना दी है। हाँ हाँ हाँ, और क्या चीज अपने के लिए तो सब करता है, क्या बात है। अपने बच्चों के लिए सब करते हैं। मजा तो जब आता है जब दूसरों के बच्चों के लिए भी त्याग करके दिखाएं। ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕੈਡਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ, हाँ जी हाँ जी, वो भी लड़कियों की ਉਹ सर। ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। बिल्कुल जी। ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? नहीं सर, मैं तो कम जाती हूँ, बहुत कम जाती हूँ। कोई 3-4 साल हो गए अब तो गई नहीं हूँ। एक दिन गई थी, जो वो भी इनकी सिस्टर की लड़की की शादी थी, ਹਾਂ, जब 1 घंटे के लिए गए थे। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦਿਲ ਜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈਏ? जब से मेरी मैरिज हुई है ना, मेरे से कोई चीज नहीं मांगी आज तक। मेरे को ऐसा सूट दिला दे भी, ऐसे गहने दिला दे, ऐसी जूती दिला दे, चप्पल दिला दे ना। हमारा तो सिर्फ एक ही टारगेट है, कुश्ती। बस ओलंपिक से मेडल और कुश्ती के लिए जीवन समर्पित कर दिया है। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਐ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? के अलावा ना हम किसी कोशिश करते हैं, किसी ब्याह शादी में नहीं जाते। मैं अपने सगे भाई की ब्याह में अपने दोनों बच्चों को नहीं लेके गया। ये जो मेरी वाइफ मेरा साथ दे रही है तो मैं रुका हुआ हूँ। अगर ये साथ ना देगी तो फिर सिस्टम मुश्किल हो जाता है, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। मुश्किल हो जाता है जी। बिल्कुल हमारे कोई ऐसे शौक नहीं भी हमने ऐसे कपड़े खरीदने हैं, ऐसे जूते लेने हैं, भी ऐसे खाना है, होटल में खाना है, बाहर खाना ना। कम से कम भी ज्यादा थोड़े नहीं तो कम से कम ये 20 से 25 हजार रुपये की बच्चा डाइट खाता है। अगर इसके अंदर कोई जी जान से अपना आप समर्पित कर दे ना और वो पहलवान ना बने तो मिट्टी में हाथ डालेगा तो वो भी सोना देगी। 50 अगर नशे से बच गए और आने वाली अगली पीढ़ी सुधार ली तो उनका जीवन तो सफल हो गया जी। जी जी जी। और हम अपनी मेहनत को भी सोचते हैं भी सफल हो गई। ये एकेडमी है ना, ये बेटी करके खोली है मैंने, एक लड़कियों की एकेडमी खोली जो है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ नहीं? नहीं कहता, हमने गुड़िया को अपनी को बेटी को शूटिंग के लिए भी मनाया था, लेकिन वो बोलती है नहीं, जब ये आपका लड़का ही रेसलिंग कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। फोन नहीं है हमारे पास, किसी बच्ची के पास, किसी भी बच्ची के पास, जिसके की बच्ची का पेरेंट्स का जिसका भी फोन आता है मेरे फोन पे ही आएगा। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो सोचते हैं कि 6 महीने में रिजल्ट आ जाए, 2 महीने में पहलवान बन जाए, 2 साल में बन जाए। अगर ऐसा कोई जादू हो तो हम अपने बच्चों को नहीं लगा दें। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸੁੱਖੀ ਮੰਘਾਣੀਆਂ। ਕੁਝ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮ ਸਫਰ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਈ ਇਹ ਜੋੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਇਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਸਫਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਮਸਫਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਜੋੜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ
ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਸਫਰ ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਸੁੱਕੀ ਭਾਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਲੇਖ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ परमात्मा ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਸ਼ਤੀ के रास्ते पे चल के सानू जो कुछ भी दिता है ये कुश्ती ने दिता है। ਅਸੀਂ इस कुश्ती को आगे बढ़ाने के लिए सभी बच्चों को ये चाहते हैं कि वो कुश्ती या नशे से दूर होके स्पोर्ट्स करें और आने वाले समय में अपने बच्चों को या अपने परिवार को इस नशे की दलदल से दूर लेके जाएं। ये हमारा एक कोशिश है और इसके लिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ लग रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि भी जो बच्चा भी नशे से दूर हो गया परमात्मा की कृपा से तो उसका जीवन सुधर जाएगा और यही हमारा जी टारगेट है। मैम, जिथे हर माँ प्यो अपने ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਹੈ ਇਹ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, अच्छा लगता है, ਕੀ बहुत अच्छा ਸੋਚਦੇ ਹੋ? लगता है, बहुत अच्छा लगता है। देखो कोई भी है अपनी लड़कियों को हमारे प्रदेश से छोड़ के जा रहे हैं तो हम भी तो उनका अपने माँ जैसे रखेंगे जब भी तो वे कुछ आगे कर पाएंगी। है ना? इसी उनके करके ही हर एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है। बच्चा क्या खा रहा है, क्या सो रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या उसका सब कुछ देखना पड़ेगा। सब कुछ देख के ही फिर ही पहलवानी कामयाब होएगी। अगर हम उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर पहलवान नहीं बन सकता। उसका हर एक चीज का, खाने का, सोने का, बैठने का, आने जाने का, हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है जी जब भी एक अच्छा पहलवान बनेगा। ਜੀ ਜੀ ਬਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਗ੍ਰੇਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? मेरे फादर साहब जॉब करते थे, मेरी मदर हाउसवाइफ थी। जी जो मेरे फादर साहब के दादाजी थे ख्याली राम जी, वो पहलवान थे। फिर 2 पीढ़ी पहलवानी नहीं थी हमारे खानदान में। फिर कोई परमात्मा ने पता नहीं किस रास्ते करके मेरे को कुश्ती की लाइन से जोड़ दिया। उससे पहले मैं तो छोटा था, पहले पिंड में ऐसे ही अखाड़ा था, वहां जाने लग गया। जी घर वालों को ये बोला भी अखाड़े में जाना है। तो पहले तो मैं छप्पड़ में नहाता था, वहां घर वाले पिटाई करते थे। अखाड़े के पास एक छप्पड़ था, वहां पे कुछ मेरे साथियों ने बोला भी वहां नहा के आया करेंगे, वहां अखाड़े का नाम ले देंगे, खाड़े में जाएंगे। और हमने बोला भी कल से खाड़े जाएंगे। नहाने तो छप्पड़ में जाते थे, लेकिन मेरे को ऐसी आदत लगी, मैं खाड़े में जाने लग गया और छप्पड़ को छोड़ दिया नहाना। क्या बात है। उसके बाद कई महीने हो गए, जब मेरे जो पड़ोस थे, गांव वाले थे, उन्होंने बोला भी आपका बच्चा कुश्ती करता है, अखाड़े में अच्छा करता है, भी इसको घी दूध दे दिया करो। घर वालों को इतना वो नहीं था भी हाँ ठीक है। उसके बाद घर वाले ने ध्यान देना शुरू कर दिया। तो जो मेरे साथी थे, कोई 200 300 400 बच्चा आता था, वो कुछ हट गए, मैं नहीं हटा, मैंने कंटिन्यू जाना जारी रखा। और कुश्ती की तरफ ऐसे हो गया, जो हमारे कोच बोलते थे, सीनियर बोलते थे, वही चीज हम करते थे। तो कुश्ती से बहुत लगाव हो गया और आज जहाँ पे भी बैठे इस कुश्ती की देन है। ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ नाम? मेरे कोच साहब हैं रणबीर कुंडू जी, पहले गांव में थे समुंदर पहलवान जी। जी फिर मैं यहाँ आ गया मोहाली में, RS कुंडू साहब मेरे कोच हैं जी, बहुत अच्छे कोच थे। और उनके पास मैं दारा स्टूडियो में ट्रेनिंग करता था मोहाली में।
उसके बाद वहीं से उनके छतर साहब नेशनल में मेडल भी आए, जी गोल्ड भी आया। उनकी आशीर्वाद से भी हम दुबई गए थे खेलने के लिए। जी जी वहीं से हमारी जॉब लग गई। कोच साहब बोले भी जाओ आप भी अपने कागज दिखाओ जाके वहाँ पे जलंधर, तो हमारी जॉब लग गई। फिर हमें पता नहीं लगा, अभी हमें पता लगा हम भर्ती हो गए। उसके बाद पंजाब पुलिस में जुड़ गए जी। कोच जी साहब के पास ही ट्रेनिंग करते थे। फिर 2010-12 तक मैंने कुश्ती करी। 2012-13 में मैं नाइस करके आया, ए ग्रेड से मैं नाइस करके आया। फिर मैं पंजाब पुलिस टीम को कोचिंग देने लग गया जी। उसके बाद मैंने 22 तक वहाँ कोचिंग करी। 2022 में सुभाष कोच साहब से मेरी रोज बात होती थी, बड़े भाई हमारे जी भी कोचिंग सेंटर बनाना है भी। कोच साहब बोले भी दिमाग में रखना है भी, जरूर बन जाएगा जी तो जो यहाँ काइनो में नरेंद्र पहलवान जी हैं, जी जी जो हमारे दोस्त हैं, कोच साहब से उनसे ये बात हुई। एक अखाड़ा था भी, कोच साहब बोले भी आपको कोच दे देंगे भी अखाड़ा चलाने के लिए। पहलवान जी बोले ठीक है दे दो। पहलवान जी ने, नरेंद्र पहलवान जी का बहुत धन्यवाद है, उन्होंने हमें जगह दे दी चलाने के लिए अखाड़ा। यहाँ पहले अखाड़ा चलता था, किसी कारण से बंद हो गया था जी। तो नरेंद्र पहलवान जी बोले भी आओ कोच साहब चला लो। तो फिर हम यहाँ आ गए उनके पास। पहलवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी है। नरेंद्र पहलवान जी का बहुत बड़ा योगदान है जो इन्होंने इतनी जगह हमें अखाड़े के लिए दे दी जी। हम इसमें अखाड़ा चलाते हैं। स्टार्टिंग में मैं और मेरी वाइफ और बच्चे आए थे यहाँ पे। हमने 7-8 महीने काफी संघर्ष किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम जुड़ गया जी। और फिर यहाँ हम पहले अपने 2 बच्चे लेके आए थे, बेटा बेटी। फिर आहिस्ता आहिस्ता पिंड के 60 बच्चे जुड़ गए हमारे साथ। कुछ बच्चे 2-4 बच्चे हरियाणा से हैं, कुछ यूपी से हैं, जी कुछ हिमाचल से हैं, कुछ बच्चे अपने पंजाब से जो हमारे पास रहते हैं। बाकी 40 से बच्चे करीब तकरीबन काइनौर पिंड के हैं, या लोकल मरिंडा से हैं या कुराली से हैं जी। नेशनल के मेडलिस्ट, बेटी का मेडल आया था अभी नेशनल में। क्या बात है। हाँ जी। और स्टेट के काफी मेडल हमारे पास 2 साल हुए हमें आज में। 2022 के अप्रैल में आए थे और 15 अगस्त से हमने एक स्टेट चैंपियनशिप कराई थी यहाँ पे। तब से मैट लगा के सिस्टम जोड़ा है और तब से ये एक टारगेट है भी बच्चों को ओलंपिक से मेडल लेके आए। यही टारगेट है भी बच्चे हमारे ओलंपिक में जाएं और वहां से मेडल लेके आए या वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडल ले आए जी। और जो बच्चा अगर गेम नहीं करेगा तो कम से कम नशे से दूर रहेगा। इतना जरूर टारगेट, अगर किसी बच्चे को नशे से ही बचा लेंगे वो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। जी जी। ये कोशिश कर रहे हैं। मैं इंटरनेशनल रेसलर भी हूँ और इंटरनेशनल कोच भी हूँ जी। मैं इंडिया टीम को 2-3 बार रिप्रेजेंट एशिया चैंपियनशिप वगैरह में लेके गए हैं। क्या बात। और मैं लेवल 1 कोर्स पास हूँ, NI से ग्रेड हूँ और कुश्ती के लिए मैं 2:45 बजे सुबह उठते हैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ उठते हैं, हमारे बच्चे भी 2:45 बजे उठते हैं। हम 3 बजे से 3-3:15 से ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैं ड्यूटी भी जाता हूँ, चंडीगढ़ मोहाली ड्यूटी जाता हूँ। वहां से ड्यूटी करके आगे फिर ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। फिर हम 8-8:30 बजे सेशन खत्म करते हैं और अपने लिए बस सोने का 4 से 5 घंटे का समय मिलता है, उसी में सो रेस्ट करते हैं और यही हमारा जुनून है। जी। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਐ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਹਮਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। फिर ਸਾਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਹਮਸਫਰ ਮੁਤਾਬਕ। नहीं देखो जो मेरी मम्मी है, हम 7 बहनें हैं, 2 भाई हैं और मैं सबसे छोटी हूँ जी। सबसे छोटी हूँ। कितने लेकिन भैणा? हाँ जी 7 बहनें, 7 ਭਰਾ 2 भरा है मेरे। 2 ਭਰਾ। हाँ जी मैं सबसे छोटी हूँ। ਵੱਡਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ। हाँ जी बहुत बड़ा है, हैं? अच्छा परिवार है हमारा। लेकिन हमें कभी मेरी मम्मी ने कभी किसी काम के लिए ये नहीं बोला कि नहीं तूने नहीं करना, ये नहीं करना। जी। मैं MA B.Ed भी हूँ, MA कर रखी है, B.Ed भी कर रखी है। MA सब्जेक्ट है संस्कृत से कर रखी है। संस्कृत। हाँ जी। हाँ हम पढ़ने के लिए जाते थे, अपने ऐसे ही खेलते कूदते रहते थे। फिर शादी होगी, शादी के बाद रेसलिंग से जुड़ गए हैं। फिर उधर से अपने ਅੱਜ ਕਦੇ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਟੀਚਰ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ?
नहीं नहीं भी इधर किधर फंस गए? नहीं नहीं, नहीं, कभी नहीं इधर सोचा, नहीं गया जी। कभी नहीं सोचा। ये जैसे भी टीचर ही हो? हाँ, ये भी हाँ, टीचिंग टीचर है, ही है। ये भी टीचिंग है एक तरह टीचिंग की? है, बिल्कुल बिल्कुल टीचिंग जी। है, टीचिंग से भी ज्यादा है जी ये टीचिंग तो। से भी ज्यादा है। ऐसा कभी भी नहीं, जहाँ को सब रखेंगे वही जी जी। हम। ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ हाँ जी, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੂ ਦੱਸੋ। ये हमारे दादा देव जी हैं। ये 400 पता नहीं 78 पता नहीं 458 पिंडों में इनकी मान्यता है हरियाणा में। जी। और जब से मैं इनसे जुड़ा हूँ ना, पहले ये हमारे पिंड में मंदिर है इनका। और जब पहले तो ऐसे ही था, अभी बच्चे थे, नहीं पता समझ नहीं थी, भी मत्था टेकने जाते थे साल बाद और मत्था टेक के आ जाते थे। जी। तो एक बार मेरे को पता लगा भी किसी ने कुश्ती कराई वहां पे छोटे छोटे बच्चों की, तो फिर उसके बाद बंद हो गई कुश्तियां। जी। तो हम तो कुश्ती से जुड़े हुए थे, तो मैंने सोचा भी अब मैं कुश्ती कराऊंगा वहां पे। तो मैंने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए, भी हम 11,000 रुपये लगा देंगे, छोटे छोटे बच्चों की कुश्तियां करा देंगे। फिर मैंने सोचा नहीं भी 11 नहीं, थोड़े ज्यादा लगाते हैं, अगले साल कराएंगे, 30-31 हजार रुपये लगा देते, छोटे बच्चों की अच्छी कुश्तियां करा देंगे। फिर पता नहीं क्या परमात्मा की मेहर रही, फिर दिमाग में आना और बड़ा दंगल कराते हैं। तो हमने फिर ईरान से पहलवान बुलाए और बड़े पहलवान बुलाए, कई लाख रुपए का दंगल कराया वो जी। तो काफी बड़ा दंगल कराया, इन्हीं के दिन कराया। इनका मेला लगता साल में एक बार, फरवरी महीने में। तो फिर इन्हीं के दिन दंगल कराया और काफी बड़ा दंगल हुआ। तो कोरोना की वजह से फिर वो दंगल करा नहीं पाए जी। तो फिर मैंने इनको मत्था टेक के हमारा अब आपके नाम से एक सेंटर बनाएंगे। उससे सेंटर तो बनाने की इच्छा पहले भी थी, लेकिन जो इनका मेरे फादर साहब के दादाजी है ना जी, ख्याली राम और हीरा जी जो पहलवान थे, उनके नाम से बनाने की इच्छा थी। फिर जब से मैं इनसे जुड़ा, कुश्तियां कराई, तो मेरे को ये होगा मैं इनके नाम से सेंटर बनाऊंगा। और जब से मैं इनसे जुड़ा ना, इन्होंने इतना मेहर भरा मेरे सिर पे हाथ रखा है जी। मैंने किसी भी काम में हाथ डाला मैं वापस ही नहीं हटा। क्या बात। इतनी मेहर हुई इनकी, तो मेरे दिल में बहुत ज्यादा श्रद्धा होगी कि जो भी मैं काम करता हूँ इनका नाम लेके करता हूँ वो पूरा हो जाता है जी। जो चीजें मैं अपने दिमाग में भी सोचता हूँ किसी को बताता नहीं, वो भी पूरी कर देते हैं। तब से मैंने इनके नाम से सेंटर बनाने का सोचा, इनके नाम से ही सेंटर बनाया। अरे इन्होंने मेरी बहुत मेहर भरा हाथ रखा मेरे सिर पे, इसलिए मैं इनके नाम से जी जी। ये शुरुआत ਇਹਨਾਂ कर ਦੀ दी। ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ? देखो जी, ड्यूटी तो इनकी भी है, 3 बजे ये भी उठते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं हम दोनों ही। फिर ये है ये अपने तैयार होते हैं, ड्यूटी चले जाते हैं। बच्चों का पीछे से खाना बनाना, खवाना, उनको देखना, स्कूल भेजना, उनके टिफिन पैक करने, उनके आने के बाद उनको दूध वगैरह शेक वगैरह देना, उनको बादामों के लिए तैयार करना, कोई बादाम रगड़िए। फिर कोसा में नहीं आते इतने में प्रैक्टिस पे होती हूँ इनकी। फिर बच्चों को प्रैक्टिस करा के फिर शाम को फिर उनको खवा पिया के सवा देना। फिर रात को बच्चों को फिर उठा के दूध पिलाना पड़ता है, क्योंकि पहलवान है, थक जाते हैं, सो उठते नहीं हैं। फिर उनको रात को दूध भी पिलाना पड़ता है, सुबह भी ट्रेनिंग के लिए उठाना पड़ता है उनको। तो फिर जब ये नहीं होते तो मैं नहीं देखना पड़ता है, कोई आया गया उसको भी देखना, बच्चों का भी देखना, और भी अपना ट्रेनिंग का भी देखना सब। मेरे से ज्यादा ड्यूटी इनकी है, मेरे से ज्यादा जिम्मेवारी भी इनकी है, क्योंकि मैं तो ड्यूटी चला जाता हूँ। इन्होंने यही देखते हैं बच्चों ने क्या खाया। फिर जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, बच्चे खाना खा के सो जाते हैं, तो इसने दूध भी देखना, भी दूध पिया नहीं पिया। सबसे लेट सोती है, सबसे पहले उठती है, सारे काम करती है, तो इनकी ज्यादा ड्यूटी है मेरे से। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? हाँ जी करते हाँ हैं जी। बच्चे, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫੱਟੇ। नहीं चलो कर देखो देते हैं प्रैक्टिस बच्चे भी। करते हैं तो फिर खाना पीना पड़ता है, आदत कोई पड़ जाती है, उनको खिलाना पड़ता है, बोल बोल के अभी ये खा लो, अभी ये नहीं किया, वो नहीं किया। उनके ऊपर तो देखो रहना पड़ेगा, अगर नहीं रहेंगे तो फिर वे सोचेंगे अब नहीं, थोड़ी देर में खाएंगे फिर सो जाएंगे, है ना? लेकिन उनको खिलाना पड़ता है। अगर अच्छा रेसलर बनाना है, अच्छी पहलवानी करवानी है, तो कुड़ी हो चाहे मुंडा, उनको खिलाना पड़ेगा, उनको देखना भी पड़ेगा। अभी बातें तो नहीं कर रहा है, सो गया नहीं, कभी उठे नहीं सुबह, भाई खा पी के जल्दी सो जाओ, सुबह प्रैक्टिस के लिए भी उठना है, उनके ऊपर देखना तो पड़ता है ना? तो देखने के लिए ही फिर अगले टाइम के लिए तैयार होता है बच्चा ट्रेनिंग के लिए। जी। हाँ जी।
ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਖਰਚੇ ਵਰਚੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ? बच्चों के लिए भी जैसे बच्चा हमारा, उसके लिए पहले तो किट चाहिए। ये किट होती है, मैट शूज होते हैं, रनिंग शूज होते हैं, कॉस्ट्यूम होती है, ट्रैक सूट होता है, निक्कर टी शर्ट होती है, जैसा मौसम होता है। बाकी इसको डाइट चाहिए। डाइट बहुत जरूरी है। अगर बच्चा डाइट नहीं खाता तो उसकी प्रोग्रेस नहीं होती है। तो अब आजकल डाइट भी बहुत महंगी है, दूध ही 70 रुपए किलो मिल रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे घर से गरीब है, ट्रेनिंग करते हैं, नहीं कर पाते, उनके लिए फिर हमें देखना पड़ता है कि किसी को थोड़ी डाइट भी देते हैं। कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर आते हैं और अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, उनके लिए हम मदद भी करते हैं जो हमसे होता है। और बगैर उसके डाइट के पहलवानी मुश्किल है आज के समय में। अगर डाइट नहीं है, बच्चा टाइम पे नहीं खा रहा, बच्चे थक जाते हैं, जोर लगाते हैं। हमारे बच्चे अच्छे बहुत हैं, वो टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, फोन नहीं रखते। और सबसे बड़ी बात तो सर ये फोन नहीं है किसी के पास। किसी के पास भी ये बहुत बड़ी गल हाँ है। जी, हाँ जी। फोन, सुभाष कोले भी गया थी मैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, फोन नहीं है हमारे पास किसी बच्चे के पास, किसी भी बच्चे के पास, जिसके की बच्ची का पेरेंट्स का जिसका भी फोन आता है मेरे फोन पे ही आएगा। हफ्ते में आता है, संडे टू संडे बात होती है, हफ्ते में एक दिन। अगर कोई बीच में काम है तो फोन करेगी तो भाई मेरे को बता दो, मैं बच्चे तक अगर कुछ मंगाना है, कुछ और करना है, मैं मैसेज छोड़ देती हूँ, फिर वे ले आते हैं। ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, हाँ जी, हाँ जी। ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? शर्ता तक ये है कि सर यही है अगर बच्चे ने ਕਿਉਂਕਿ पहलवानी ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਤੇ कर, ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। बिल्कुल ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹ बिल्कुल। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ जी बिल्कुल जी। ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਚ ਕਾਮਯਾਬ नहीं हो सकता। देखो शर्त तो यही है सर, अगर एक तो बच्चे को फोन अलाउड नहीं है, हाँ। एक बच्चे को डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, है ना। उसको टाइम से खाना, टाइम से सोना, और एक चीज देखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि भाई कभी उसको ये देखना पड़ेगा अगर फोन फान दे दे, ये नहीं। हफ्ते में एक दिन ही फोन मिलेगा, अगर आपका बच्चा रहता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो फोन करके थोड़े समय के लिए हमारे पास रुकते हैं, फिर बहाने बहुत लगाते हैं। ये हमें खाने को नहीं मिलता है, हमें तो मैम खाने को कम देती, अपनी बेटी पे ध्यान ज्यादा देती। ये हमारे लिए बड़ा एक वो है, क्योंकि बच्चा जो इसने रुकना नहीं ना, इसने पहलवानी नहीं करनी है, अभी फोन चाहिए, आजादी चाहिए। आजादी तो यहाँ भी है, लेकिन वो जैसी वो चाहिए उनको वैसी नहीं आजादी है। भी खाएं पिए खेले कूदें, ये आजादी है, लेकिन वो बाहर घूमने बाजार जाएं या फोन चाहिए, ऐसी आजादी हमारे पास नहीं है। हमारी गेम ही ऐसी है, डिसिप्लिन में रहेगा तो तगड़ा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फिर वो बहाने बहुत लगाते हैं। पेरेंट्स जो जो पेरेंट्स अपने बच्चे की बात मानेगा ना, वो तगड़ा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। बच्चा गुमराह करता है आजादी के लिए, और हमारे पास ऐसी आजादी नहीं है कि भी उसको बाजार घुमा दें, शादी में ले जाएं, पार्टी में ले जाएं या फोन दे। ये आजादी हमारे पास नहीं है। इसलिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेरेंट्स को गुमराह करके चले जाते हैं। लेकिन पेरेंट्स ये नहीं सोचता भी बच्चे की बात सुन लेते हैं। हमारे पास तो कैमरे लगे हुए हैं, हर एक जगह कैमरा लगा हुआ है, लेकिन पेरेंट्स फिर भी बच्चे की बात मानता है। भी हाँ, बच्चे ने ऐसे बोला भी इसको फ्रूट नहीं देते, इसको दूध नहीं देते, इसको दही नहीं देते। हम किसी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, चाहे कोई पिंड का है, चाहे वो अखाड़े में रहता है। लेकिन पेरेंट्स कुछ सोचते हैं कि भाई नहीं, जहाँ आजादी नहीं है वहाँ बच्चा गुमराह कर देता है पेरेंट्स को। और ये तपस्या ऐसी है, जब तक आप तप नहीं करोगे ना, कामयाब नहीं होगे। और हमारी गेम तो बगैर ब्रह्मचारी रहे, बगैर साफ सुथरा जीवन के कामयाब नहीं हो सकते, आप लंबे समय तक नहीं चल ਤੁਸੀਂ ਵੀ सकते। ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਥਾਪੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। लाते हैं। ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ बिल्कुल ਸੀ। बिल्कुल कुटते थे। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, हाँ जी, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਹੈਗੀ हाँ ਹੈ। जी, बिल्कुल। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਅਪ ਕਰਿਆ ਹਾਂ, बहुत हाँ बच्चे जी। गुमराह लेकिन करते हैं। जिस पेरेंट्स ने स्पोर्ट्स कर रखी है वो बच्चों की बातों में नहीं आता, वो अपने बच्चे को लंबा लेके जाता है, फिर उसका बच्चा कामयाब होता, उन्हें उसे कोई नहीं रोक सकता। जिस पेरेंट्स ने कर रखी है, कोई भी गेम कर रखी है, उसको ये पता भी, हाँ, क्योंकि वो भी इन चीजों में से निकला हुआ है, उसको हर एक चीज का पता लग जाता है कि बच्चा कहाँ झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है। जो बच्चा साल 6 महीने 2 साल तक रहता है, फिर एकदम अचानक से ऐसे बोलेगा तो फिर क्या पेरेंट्स को पता नहीं है। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਫੋਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਫੋਨ ਨਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, हाँ जी, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। बिल्कुल जी, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, हाँ जी, मिल हाँ भी जी। रहे हैं। ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी, हाँ जी।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ देखो ਬੱਚੇ जी, अगर बच्चों के पास फोन है ਜੀ तो फोन पे बच्चा लगा रहेगा, ਹੂੰ वो फोन भी चला, कॉलिंग भी करेगा, व्हाट्सएप भी करेगा, स्नैपचैट है, यूट्यूब है, सब कुछ खोलेगा। ना उसको खाने का पता रहेगा, ना उसको सोने का पता रहेगा, बस वो अपने फोन में ही लगा रहेगा। ना उसको ये प्रैक्टिस का रहेगा, बस ऐसे ही फोन से। तो आज का टाइम ऐसा है, एक बार छोटे बच्चे को दे दो वो भी नहीं हटेगा फोन से, तो बड़े तो हटेंगे क्या। ਹੂੰ लेकिन कुछ फायदा भी है, यूज के लिए करे तो अच्छा है, लेकिन जब बच्चे समझदार होते थे फिर उनको कौन देखता है। वे फिर अपने फोन में लगे रहते 12-1 बजे तक, 2 बजे तक, सुबह उठना नहीं, कुछ दिन में खाना नहीं, फोन पे लगे रहते, फिर ये नुकसान ही है। हम्म वो टाइम पे सोते टाइम नहीं, पे सोते नहीं, रेस्ट नहीं करते ये नुकसान है। और बैग जाते हैं। बच्चे को समझ नहीं होती है, बच्चे का कसूर नहीं निकालते हमें, उसको समझ नहीं है, वो छोटा है, दिमाग नहीं काम करता, बैग जाता है। कुछ ऐसे हैं जो गुमराह कर देते हैं उनको, वो फिर उसको वही अच्छा लगता है जो उनसे चिकनी चुपड़ी बातें करता है, जो सख्ताई दिखाता है उनके भविष्य के लिए, उनको फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए कोशिश करते हैं बच्चा फोन से दूर रहे, किसी से दोस्ती ना करे। दोस्ती से भी हम परहेज करते हैं भी, जब तक कामयाब ना हो दोस्त, हम नहीं चाहते भी दोस्त बने बच्चे के। ये हमारी, हम अपने बच्चों के भी नहीं बनने देते और दूसरों को भी बोलते ना भाई दोस्त हैं, सब हंसते बैठते हैं, खेलते कूदते हैं, वो दोस्त हैं। लेकिन ज्यादा किसी की बातों में आगे गुमराह हो, फिर उससे नुकसान होता है। कई बच्चे हमारे खराब हो गए ऐसे ही, जो अच्छे बनने वाले थे और ऐसे ही किसी की बातों में आ गए, फिर वो गुमराह हो जाते हैं। हम तो अपने बच्चों से भी डरते हैं भी गुमराह ना हो जाए कहीं पे। टारगेट बहुत लंबा है, कुश्ती है ना, ये 5-7 साल में तो रिजल्ट आना शुरू होता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो सोचते हैं कि 6 महीने में रिजल्ट आ जाए, 2 महीने में पहलवान बन जाए, 2 साल में बन जाए। अगर ऐसा कोई जादू हो तो हम अपने बच्चों को नहीं लगा दें। मेरे भी दोनों बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, पहलवान, अच्छे पहलवान बनाना चाहता हूँ, तो वर्ल्ड लेवल के और ओलंपिक लेवल के पहलवान चाहता हूँ। लेकिन कोई जादू हो तो अपने बच्चों को ना लगा दें। सही गल है। लेकिन पेरेंट्स कुछ समझते नहीं और सोचते हैं भी 2 साल में रिजल्ट आ जाए, इसलिए वो अखाड़े बदलते हैं, बच्चे उनको गुमराह कर देते हैं। वहाँ अच्छी ट्रेनिंग होती है, वही ट्रेनिंग हम अपनी बेटी को कराते हैं, वही सभी को कराते हैं। बदल ये थोड़ी है भी किसी को लुक के ट्रेनिंग कराते हैं, सबको एक साथ ट्रेनिंग कराते हैं। वही डाइट जिस जैसे पेरेंट्स अपनी श्रद्धा के अनुसार डाइट देते हैं, वो अपने ऊपर अभी हम कितना खर्चा करते हैं डाइट पे। वही खाना वो खाते हैं, वही हम खाते हैं, वही दूसरे खाते हैं। तो बच्चे जो तप करेगा, जो 5-10 साल रुकेगा, उसका मेडल आएगा। जो सोचे 1 साल में मेडल आ जाए, 2 साल में, कभी नहीं हो, कभी भी नहीं हो सकता। ये तो 5-7 साल का इंतजार करना पड़ेगा और तब करना पड़ेगा, जब मेडल आएगा, उससे पहले मेडल नहीं आएगा। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੰਗਲ, हाँ जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਓ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਲ ਨਾ ਕਟਾਓ, हाँ जी, ਹੈਨਾ। हाँ हाँ जी, जी। ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, हाँ जी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ नहीं? नहीं, इनों का भी था तो बच्चों का भी था। बच्चों को भी हमने ये देखा था, हमने गुड़िया को, अपनी को, बेटी को शूटिंग के लिए भी मनाया था, लेकिन वो बोलती है नहीं, जब ये आपका लड़का ही रेसलिंग कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। हाँ वो गई नहीं, बते रहे, हमने कोशिश की, चलो भाई शूटिंग में हो जा तो रेसलिंग को छोड़ दे, बोलती नहीं मैं करूंगी तो रेसलिंग ही करूंगी। जी। हाँ जी, फिर हमने चलो जो बच्चे का दिल करता है वही करो, जबरदस्ती हम कितने दिन करेंगे। तो इस करके फिर हमने ये सोचा चलो जो भाई अपनी ये एकेडमी है ना, ये बेटी करके खोली है मैंने, एक लड़कियों की एकेडमी खोली जो है। पहले मैंने अपनी बेटी को, मैं टीम में था, जलंधर था, पंजाब पुलिस टीम में, वहाँ शूटिंग का बहुत अच्छा था। मैंने इसको बोला बेटा तू शूटिंग कर ले, और मैंने एकेडमी बनानी है, अभी इसको बेटे को रेसलिंग कराएंगे, तू शूटिंग कर ले। वो बोलती इसको भी शूटिंग करा ले। मैं कहा अभी नहीं, इसको पहलवान बनाना। बोलती फिर मैं नहीं पहलवान बनना है। तो मानी नहीं, तो फिर मेरे को डिसीजन लेना पड़ा, अभी एकेडमी तो एक ही चलेगी, या लड़कों की चलाऊंगी या लड़कियों की। तो मैंने लड़कियों की एकेडमी का वो कर लिया, और बेटे को सुभाष को साहब के पास छोड़ दिया पटियाला। तो ऐसा सिस्टम बना, इसलिए एकेडमी बना ली हमने यहाँ पे। और इसमें नरेंद्र पहलवान जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो इन्होंने इतनी जगह हमें एकेडमी के लिए दे दी। जी। हाँ, कुछ इसमें बिल्डिंग बनी हुई थी, कुछ अब हमने काम शुरू कर रखे हैं जो हम बना रहे हैं। एक हमारे प्रिंसिपल साहब हरसोन सिंह, उनका इधर हीरा पब्लिक स्कूल है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जी। किसी काम को बना नहीं करते हमारे,
उनका बेटा है राय सिंह, वो भी है। बाकी लगे हुए हैं परमात्मा की कृपा से। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, जी जी। कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करता। ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, हाँ जी, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। हाँ जी, ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕੈਡਮੀ बिल्कुल। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ, हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, वो भी लड़कियों की ਉਹ सर। ਵੀ ਲੜਕਿयों, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ सर। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। बिल्कुल जी। जी। ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? नहीं सर, मैं तो कम जाती हूँ, बहुत कम जाती हूँ। कोई 3-4 साल हो गए अब तो गई नहीं हूँ। एक दिन गई थी, जो वो भी इनकी सिस्टर की लड़की की शादी थी, ਹਾਂ जब 1 घंटे के लिए गए थे। गई नहीं, जाती नहीं ना, दिल भी नहीं करता सर। अपने बच्चों में हम ठीक हैं, अपने बच्चों में लगे रहते हैं, टाइम का पता ही नहीं लगता सर। कभी किसी की याद आती ही नहीं। ਕਦੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? हाँ जी। ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं लगता ऐसे। ਹੂੰ चलो ये तो आता जाता रहता है, लेकिन हम अपने बच्चों में खुश हैं। ਜੀ। हाँ जी, अपने बच्चों ने चलो टाइम से खवा रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग देख रहे हैं, सब कुछ करें, हम इनमें ही खुश हैं। हमें ये नहीं है। सर परमात्मा ने इतने बच्चों की माँ बना दी है, हाँ हाँ हाँ, और क्या चाहिए? अपने के लिए तो सब करता है, क्या बात है। अपने बच्चों के लिए सब करते हैं। मजा तो जब आता है जब दूसरों के बच्चों के लिए भी त्याग करके दिखाएं। ये कुश्ती त्याग की है, जो त्याग करेगा वही उसको ही फल मिलेगा। जब हम दूसरे के बच्चों को अपनों की तरह करेंगे तभी जाके परमात्मा देखता है और तभी फल मिलता है। और हमें तो कोई ऐसी कभी समस्या नहीं आई है, भी कोई ऐसी इस तरह की समस्या आई हो या कुछ भेदभाव ना हमारे पास नहीं है। हम तो कोशिश करते हैं, बच्चों को डाइट भी देते हैं, और जो बच्चा रेगुलर आता है उसका बहुत ध्यान रखते हैं। अगर मान ले इसी गांव से 10-20 बच्चे नौकरी लग जाते हैं तो परमात्मा की बड़ी कृपा हो जाएगी कुश्ती की वजह से। जो बच्चा यहाँ पे रोजगार मिल जाएगा जिसको, और जो नशे से दूर रह गया तो हम अपने आप को बहुत बड़ी उपलब्धि मानेंगे भी हाँ, हमने परमात्मा ने कोई हमारे लिए कोई काम लगाया था, हमने उसको पूरा कर दिया। यही ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੂ ਚੀਮੇ हाँ ਵਰਗੇ, जी, ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, हाँ जी, ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਥੀ ਬੰਨਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। बिल्कुल जी, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਪਿਓ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, बिल्कुल जी, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ। हाँ जी, हाँ जी, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ बिल्कुल जी, ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ जी, हाँ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਮਚਾ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਿਆ ਹੋਊਗਾ, बिल्कुल ਉਹ बिल्कुल ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ नहीं आंदा, ਹੋਊਗਾ। नहीं वो नहीं आंदा। ਇੰਨਾ ਫੂਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ हाँ जी, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। हाँ जी, बिल्कुल जी, ਕੋਈ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, हाँ जी, ਬਹੁਤ NGO ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ NRI ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, हाँ जी, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, हाँ जी, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ, बिल्कुल जी, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, हाँ जी, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ हाँ जी। ਤਾਂ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ चाहिए ਸਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ भी कुश्ती के लिए कोई भी इक्विपमेंट है, जिम है या कुछ और चीजें हैं, जो कुश्ती मैट है, कई चीजें हैं, वो किट है बच्चों के लिए। सबसे बड़ी तो डाइट है जी। कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो डाइट नहीं ले सकते, जिनके पास जूते भी नहीं है जूते दौड़ने भी के नहीं लिए, फिर भी प्रैक्टिस पे आते हैं। और ये उस परमात्मा की मेहर है भी। हम कोशिश करते हैं, चाहे किसी से पुराने मांगे, चाहे किसी से नए का कहे, चाहे वो हमारी ड्यूटी लगाए परमात्मा, हम कोशिश करते हैं उस बच्चे की उस चीज को पूरा करें किसी भी तरीके से जी। लेकिन अभी तक हमारे साथ कोई ऐसा सज्जन जुड़ा नहीं है जो इस तरफ ध्यान जाए, जिसका भी इन बच्चों की मदद करे डाइट की तरफ से हो। अगर कोई सज्जन जुड़ना चाहता है तो वो, हमें किसी पैसे की जरूरत नहीं है, कुछ भी दे सकता है। डाइट कणक से लेके आटा दाल से लेके जो मर्जी दे सकता है, वो इसकी श्रद्धा है। ये तो हमें 2 ही सज्जन मिले हैं अभी तक, जो भी, एक तो नरेंद्र पहलवान जी, एक अपने प्रिंसिपल साहब हैं जी, जिन्होंने हम जिस टाइम भी कहते हैं उस टाइम खड़े मिलते हैं जी, और हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं।
बहुत ज्यादा कुछ करते हैं। पहलवान जी ने तो इतनी बड़े जगह हमें दे रखी है, उनका तो हम एहसान नहीं भूल सकते। जी और प्रिंसिपल साहब का भी बहुत बड़ा योगदान, उनका जी। बेटा भी हमारे लिए कोई भी काम कहे वो तैयार रहते हैं। जी बाकी कोई अभी तक कोई ऐसा दानवीर सज्जन जुड़ा नहीं है। जी जी अब सरकार है, सरकार की तरफ से थोड़ा आश्वासन हमें दिया गया, अभी आपकी मदद करेंगे। जी थोड़ी एक विंग का हमें बोला है, अभी विंग सरकार ने अब की बार थोड़ा हमारी मदद करी है जी जी विंग के लिए। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं, अभी बच्चों को दूध है, फ्रूट है, कोई बादाम है, या भी कोई अंडे हैं, या कुछ कुछ भी मदद है, कोई ट्रैक सूट है, कोई किट है, कोई जूते हैं, ये कहीं ना कहीं से बच्चों को उपलब्ध कराएंगे, कोशिश है हमारी। और इसी कोई सज्जन अभी तक कोई अगर NRI पर जुड़े या कोई और दानवीर सज्जन जुड़े तो हमें इसका बड़ा बच्चों को फायदा होगा, क्योंकि ये पहलवानी है ना, बहुत महंगी गेम है, जी जी बहुत ज्यादा इसके अंदर डाइट की जरूरत है, और रेगुलर डाइट की जरूरत है, 2-4 दिन का नहीं होता इसमें, रेगुलर डाइट है। जी। अभी हमारे एक DSO साहब आए थे, उन्होंने हमारी काफी मदद करी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। की करके गए हो वो उन्होंने बोला, अभी सरकार की तरफ से बोला भी हम आपकी मदद करेंगे। जी जी अभी देखो मदद आती है तो फिर बताएंगे आपको। जी जी एक हमें उन्होंने विंग दी है, जी जी तो आगे हमने उन्हें से रिक्वेस्ट करी भी हमें थोड़ा बच्चों के लिए अगर जी। कोई ज्यादा डाइट उपलब्ध करा दे तो बड़ा धन्यवाद होगा। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜਦਾ ਹੈ। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਪੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ हाँ जी ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, हाँ जी हाँ जी ਮੈਡਲ ਆਉਣ ਨਾ ਆਉਣ, बिल्कुल ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ हाँ जी ਵਧੀਆ ਬਣਨੀ ਹੈ, बढ़िया बन ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੂਰ ਦਗਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ, हाँ जी ਮੈਂ ਚਾਹ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪਿਆਓਗੇ? हाँ जी बिल्कुल भाजी, ਹੈ हाँ जी हाँ जी। ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਖਾਂਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ हाँ जी ਸਾਰਾ ਦਿਨ, हाँ जी ਹਨਾ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੀਰੀਅਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਕਈ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 4-5 ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। हाँ जी ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ, हाँ जी हाँ जी ਪਰ ਖਾਣੇ ਪਾਣੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, हाँ जी हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਗੇੜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? खुराक के नाले अच्छी है, इनका कोई ऐसी नहीं, इनकी 2 दिन का मैट पे रेस्ट होता है। ਜੀ जब इनको पीरियड्स वगैरह आते हैं 2 दिन इनको मैट पे नहीं चढ़ाते, बाहर कर सकती है, डंबल कर लो, अपने थारा बैंड कर लो, पैरों की कर लो, लेकिन 2 दिन का मैट पे रेस्ट होता है। चलो जी, जी। किसी बच्चे को ज्यादा तकलीफ हो जाती है, किसी को कम हो जाती है, लेकिन 2 दिन के लिए सबका रेस्ट है। तीसरे दिन बच्चा अपने मैट पे चढ़ सकता है। जी अगर कंपटीशन है और है फिर उसको जैसे अपना प्रैक्टिस जैसे मर्जी करिए, 2 दिन के लिए तो उसको बाहर रखते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा जोर भी लगता है, बच्चे के आगे का भी देखना पड़ता है ना। लेकिन ये है बच्चे खाते पीते हैं, ऐसी तो डॉक्टर की तो हमें आज तक जरूरत नहीं पड़ी है किसी को भी कि भाई इन चीजों में डॉक्टर की जरूरत है, सब ठीक है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ हाँ ਮੈਂ जी ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਤੈਅ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ हाँ ਨੂੰ, जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। बिल्कुल जी बिल्कुल ਮਨੀਸ਼ ਫੋਗਾਟ हाँ जी ਜਦੋਂ ਆ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, बिल्कुल हाँ जी हाँ बिल्कुल जी ਉਹ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। बिल्कुल जी ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, हाँ जी हाँ हाँ जी, जी हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਡਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, करना पड़ता ਪਰ है। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੂਟ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਣਾ, हाँ जी हाँ हाँ जी, जी ਉਹਦਾ घूंघट नहीं ਚੱਲਦਾ देखो ਤੁਹਾਡੇ। सर ये है ना, अगर हम बच्चे बाल रखा लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी प्रैक्टिस पे उनमें पसीना आता है, इतना टाइम नहीं होता बहाने के लिए, धोने के लिए नहीं होता है, इस करके चलो बच्चे ने ये है इतने पहलवानी करी है, जब मर्जी बधा लो, बालों का क्या है, प्रैक्टिस छूटने के बाद बधा लो, बाल तो
2-4 महीने में, 6 महीने में फिर वैसे इन्होंने ही कोई हो शैम्पू जाएंगे। लोड़ा खराब बिल्कुल, खाती हुई है, बिल्कुल इन्होंने खराब कर दी। इन्होंने तो बध ही जाने हैं। हाँ जी, बध ही जाने, और फिर इतना टाइम भी नहीं होता है क्योंकि हाँ। सिर धोना भी पड़ता है, तेल भी लगाना उनको, पसीने प्रैक्टिस में, फिर दूसरे दिन ना वो करे तो फिर उनमें खाज मच जाती है, स्मेल आने लगती है पार्टनर को भी, वो भी बोलेगा भी सिर धो के आइए, तो इतना टाइम होता नहीं है, सूखता नहीं सिर। सूखता नहीं सिर। और जो ये बच्चे है ना जी, ये कम से कम भी ज्यादा, थोड़े नहीं तो कम से कम ये 20 से 25 हजार रुपए की बच्चा डाइट खाता है महीने भी। महीने में। बिल्कुल जी बिल्कुल। जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10-15 हजार रुपए की तो नॉर्मल बच्चा डाइट खाता है। हाँ 10-15 हजार की तो एक नॉर्मल लड़की की बच्चा। नॉर्मल है। जो हमारे क्योंकि- बच्चे हैं वो 40-40 हजार रुपये महीना चला जाता है एक का। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। कुश्ती इतनी सस्ती गेम क्योंकि है। जब बच्चा 2-3 टाइम प्रैक्टिस करेगा, खाएगा नहीं तो करेगा कैसे, अगर डाइट नहीं खाएगा तो ट्रेनिंग नहीं कर ट्रेनिंग सकता कैसे लंबे करेगा समय। अगर उसको डाइट प्रॉपर नहीं मिलेगी तो। 2 बच्चे हैं हमारे, वो 80-80 हजार रुपए की डाइट खा जाते हैं महीने की, और बाकी किट रहेगी अलग से। हाँ बाकी जैसे शूज है, जो रनिंग शूज है वो 10-10, 15-15 हजार रुपए का एक जोड़ी शूज आता है, 16-16 हजार रुपए का एक जोड़ी शूज आता है। मैट शूज है, तो अगर अच्छे शूज नहीं डालते तो प्रॉब्लम आती है रनिंग में, रनिंग में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे ही हमें डाइट की ज्यादा चिंता है अभी। बाकी हम कोई पैंट शर्ट ऐसी चीजें तो खरीदते नहीं है, लोअर टी शर्ट या प्रैक्टिस का सामान खरीदते हैं, डाइट खरीदते हैं। और जो बच्चा इतनी डाइट खाता है तो ट्रेनिंग भी ज्यादा करता है, और 10 साल तक कोई भरोसा नहीं कामयाब होएगा कि नहीं होगा। लेकिन जो जुटा रहेगा, लगा रहेगा, मेहनत करेगा, वो 100% कामयाब होगा। ये कुश्ती तो एक ऐसा खेल है, अगर इसके अंदर कोई जी जान से अपना आप समर्पित कर दे ना, और वो पहलवान ना बने तो मिट्टी में हाथ डालेगा तो वो भी सोना देगी, ये गारंटी है। ये अजमाई हुई भी है और ये बिल्कुल गारंटी है। जो इसमें तप करेगा वो कभी बेरोजगार नहीं रह सकता, और किसी कारण से रह जाए तो जो भी काम करेगा वो कई हजार गुना फल देगा वो काम। मैं तो देख ਰਿਹਾ ਸੀ हाँ जी, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, हाँ जी, इत्थे ही ਇਹਨਾਂ साडी- ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਾ, हाँ जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋੜਾਂ बिल्कुल जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁੱਲੀ ਹਾਂਜੀ। ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ हाँ जी, हाँ जी, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी बिल्कुल जी, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਲਟ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਮੈਡਮ, हाँ जी ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ हाँ ਤੇ जी, ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, हाँ हाँ जी, जी ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਠੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, हाँ जी बिल्कुल जी, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਇੱਕ, हाँ जी। ਹਨਾ, हाँ जी ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦਿਲ ਜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ 4 ਕਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈਏ? नहीं सर कभी नहीं ऐसा, हैं? कभी नहीं ऐसा तो ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਵੀ नहीं। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋगिंदर ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਲੇਗਾ? नहीं, नहीं ये तो नहीं। कभी, ये मेरे को एक नहीं सर, बहुत कभी बड़ा नहीं वो है ऐसा। जी। जब से मेरी मैरिज हुई है ना, मेरे से कोई चीज नहीं मांगी आज तक। मेरे को ऐसा सूट दिला दे भी, ऐसे गहने दिला दे, ऐसी जूती दिला दे, चप्पल दिला दे ना, हाँ कभी नहीं मांगे, आज तक नहीं बोला भी ये मेरे को 500 का ही दिला दे, 1000 का ही दिला दे। 1000 का बोलेंगे तो कोई नहीं, हम 500 में काम चला लेंगे। 500 का बोलते हैं तो 250 में काम चला लेंगे, ऐसे कभी नहीं। हमारा तो सिर्फ एक ही टारगेट है, कुश्ती, बस ओलंपिक से मेडल, और कुश्ती के लिए जीवन समर्पित कर दिया है। इसके अलावा ना हम किसी कोशिश करते हैं, किसी ब्याह शादी में नहीं जाते। मैं अपने सगे भाई की ब्याह में अपने दोनों बच्चों को नहीं लेके गया। क्या बात है यार। अभी पिछले साल हुआ था 23 में, दिसंबर में, सगे भाई की मैरिज में दोनों बच्चों को नहीं लेके गया। और सगी भांजे की मैरिज में एक दिन गए थे, एक दिन, उसी दिन बेटे को तो उसी टाइम वापस कर दिया था वहां से, बेटी को अगले दिन लेके आ गए थे, दिन के दिन गए थे। कहीं और किसी ब्याह शादी जन्मदिन पार्टी कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं जाते। सिर्फ कुश्ती, इसके सिवा एक ड्यूटी और कुश्ती, इसके सिवा कोई शौक नहीं रखते। घर जाते हैं उसी दिन वापसी कर लेते हैं, चाहे रात को करें चाहे आधी रात को करें, उसी दिन की वापसी होती है। ये सिस्टम हमारा, ये तो जाती ही नहीं है। तो ये मेरा साथ देती, इसलिए हम टिके हुए हैं यहाँ पे। ये कारण है बड़ा मेरे लिए यहाँ रुकने का। ये जो मेरी वाइफ मेरा साथ दे रही है तो मैं रुका हुआ हूँ। अगर ये साथ ना देगी तो फिर सिस्टम मुश्किल हो जाता है, फिर जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है जी, बिल्कुल। हमारे कोई ऐसे शौक नहीं भी हमने ऐसे कपड़े खरीदने हैं, ऐसे जूते लेने हैं, भी ऐसे खाना है, होटल में खाना है, बाहर खाना ना, अपने घर का खाना खाते हैं। ड्यूटी पे भी घर का खाना लेके जाते हैं, और ड्यूटी से वापसी सीधे अपने घर करते हैं, कहीं रुकते नहीं है। आते ही ट्रेनिंग कराते हैं,
ये सिस्टम हमारा, किसी के घर नहीं जाते, किसी के पास आते जाते नहीं है। बस बच्चों में खुश रहते हैं हम, अपनी ट्रेनिंग कराई और उनके साथ लगे रहते हैं। सोने का समय ही नहीं मिलता जी हमें तो, कोई कर्मों वाला दिन है जिस दिन सोने का समय मिल जाता है, नहीं तो मिलता नहीं। 4-5 घंटे ही नींद है हमारी, ये सिस्टम है जी। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਲਾ 4-5 ਸਾਲ ਖਾ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਨਾ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ बिल्कुल ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, हाँ जी हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ, ਟੌਪ ਦੇ ਕੋਚ ਕੋਲੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ, हाँ जी ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। हाँ जी ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਦਾਮ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਜੂ ਦੇ ਦੇ, हाँ ਕਿਸੇ जी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੁਰਾਕ, हम्म, ਬਣਦੀ ਫੀਸ 20-25 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी ਅੱਜ ਤੋਂ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, बिल्कुल जी ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਫਿਰਨ। हाँ जी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਿੰਡ ਨੇ ਲਾਇਆ ਮਾ बिल्कुल जी ਨਾ, ਮੈਂ ਜੇਬ ਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਡਿਕਾਤਰੀ ਸੀ, बिल्कुल ਪਿੰਡ ਨੇ ਲਾਇਆ ਮਾ। हाँ जी हाँ जी ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂਆਂ, ਪਿੰਡੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ हाँ ਕਿ जी ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ बन ਉੱਥੋਂ। के बिल्कुल जी हाँ ਭਾਈ ਗੱਲ ਲੜ ਬਣਨੀ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। जी। ये ਤੇ हकीकत ਅੱਜ है भाजी। ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ हम्म, ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦਾ बनेगा ही ਫਿਰ। नहीं उसका, कुछ नहीं बनेगा भाजी उसका। जो इन्ना करदा ना किसी लिए भी करदा है, ਹਾਂ चाहे ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ हैं किसी ਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਰਦਾ है, ਹੂੰ जैसे उस ते खरे नहीं उतरते ना ਹੂੰ फिर उसका कुछ नहीं बनता, क्योंकि परमात्मा है। परमात्मा जब परमात्मा की भी ऐसी गल नहीं मानते, पूरी 76 साल फिर भाजी कुछ कख नहीं बनना बंदे दा। ਲੋਕ ਰੱਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, बिल्कुल जी बिल्कुल। ਰੱਬ ਥੋੜਾ ਰੱਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। रब बसता बिल्कुल। बिल्कुल रब बसता जी। ਹੂੰ। लेकिन भाजी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका टारगेट ही वही है, जिनका टारगेट ही है। जिस सज्जन ने भी उसको दान पुण्य कराया है, उसका तो उसके परमात्मा के खाते में लिखा गया, समझ रहे हो ना। जिसने गलत किया है वो उसका हर्जाना भरेगा, जिसने अगर किसी ने भी गलत किया वो उसका हर्जाना भरना पड़ेगा उसको। लेकिन जिसने भी जो जुड़ा है उससे, जिसने परमात्मा की कृपा से उसका मदद करी है, उसकी परमात्मा बहुत मदद करता है। हम्म। अगर मान ले हम भी इसी उम्मीद से लगे हैं, अगर हमारे पास 60 बच्चे हैं तो यही टारगेट 60 नहीं तो 10 तो पहलवानी करेंगे, 50 अगर नशे से बच गए और आने वाली अगली पीढ़ी सुधार ली तो उनका जीवन तो सफल हो गया जी। जी जी जी। और हम अपनी मेहनत को भी सोचते हैं भी सफल होगी। अगर 50 भी नहीं बचा पाए, एक भी बचा लिया, एक भी बचा लिया तो वो भी ज्यादा बड़ी उपलब्धि है। और एक बच्चे ने पहलवानी कर ली, और जो बच्चा जुड़ा हुआ है आज नहीं, इनको 28 और 30-32 साल में पता लगेगा कि कौन सही था कौन गलत था, पता लगता है जी। जी जी जी। ਸਾਡੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। हाँ जी ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਹੁਰੇ ਬੈਠੀ ਧੀ ਨਾਲ ਪੇਕੇ ਵਾਲੀ ਮਾਂ हाँ जी ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਓ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਪੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। बिल्कुल जी ਪੁੱਠੀਆਂ बिल्कुल जी, ਜੇ ਧੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ बिल्कुल जी, ਪੇਕੇ बिल्कुल, ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਰਹੇ। बिल्कुल ਹਾਂਜੀ। जी। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, हाँ जी, ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਿਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, बिल्कुल बिल्कुल जी जी, कर दे। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਹੈ ਮਾਪਿਓ ਦਾ, बिल्कुल जी ਉਹ ਮੋਹ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। कर देंगे भाई। कर ਬੱਚਾ देंगे। ਰੋ ਪਿਆ, हाँ जी हाँ जी, ਬੱਚਾ ਰੋ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, हाँ हाँ जी, जी हाँ जी ਮੈਨੂੰ ਕੋਚ ਨੇ ਝਿੜਕਤਾ, बस, बिल्कुल जी ਥਾਪੜੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, हाँ जी हाँ जी ਛੱਤਰ ਪਰੇਡ ਵੀ ਹੋਊ, बिल्कुल बिल्कुल जी, जी। बिल्कुल, ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जी ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? नहीं देखो जी, कहना तो क्या चाहते हैं जो ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ, हाँ सलाह दे बिल्कुल जी, सकते हैं। सलाह ਇਹ ਗੱਲਾਂ दे सकते हैं। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, बिल्कुल जी बिल्कुल। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? वही दसूंगा जी ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ, हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, बिल्कुल जी ਇਹਦਾ ਕੋਚ ਨੇ, हाँ जी ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, बिल्कुल ठीक जी है। ਖਾਣਾ ਹੈ हाँ जी हाँ जी ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ? हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਟ ਨਾ ਦੇਈ ਚੱਲੋ, हाँ जी हाँ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਣ ਪਹਿਲਵਾਨ बिल्कुल ਜੀ, जी, बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰੋ, हाँ जी हाँ जी जी। ਆ ਹੋਈ ਹੈ। देखो वही जी, वही ਦਿਨੇਸ਼ भाजी। ਫਗਾਟ ਨਾਲ हाँ जी ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸੀ? हाँ जी हाँ 50 जी ग्राम, ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਰੌਲਾ 100 ਹੋਊਗਾ? ग्राम का। 100 ग्राम 100 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਹੁਣ? ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਚ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ,
बिल्कुल जी, बहुत की थी। ਗੱਲ ਬੱਕਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ। हरियाणी धी पंजाब ने गुस्सा बहुत तो ਵੱਧ दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल भाई, दिखाया है ना? बिल्कुल। ज्यादा दिखाया। ज्यादा दिखता। देखो जी, पेरेंट्स है ना, कईयों के तो पेरेंट्स पूछते ही नहीं बच्चा क्या खा रहा है क्या कर रहा है, उनको ये पता भी बच्चा हाँ ठीक है, सही हाथों में। सही हाथों में है भाई, हाँ टाइम से खा रहा है। क्योंकि हफ्ते 10 दिन में तो पेरेंट्स आ ही लेता है, वो देखता भी है, रुक भी, कई रुक भी जाते हैं, रात रुक लिए, दो रात रुक गई, कई की मदराती रुक जाती है। उनको ये नहीं पता हमारा बच्चा क्या खा रहा है, कैसे रह रहा है, क्या कुछ कर रहा है। जिसने रहना हो तो अच्छा है, लेकिन क्या दिक्कत आती है ये हैगा सर, यहाँ जब तक रहते हैं इतने ठीक है, जब बच्चे का मन ही नहीं लगा, जाने लगे, फिर तो क्या पता क्या क्या कहेगा जी, है ना। ऐसे तो कोई लेके नहीं जाए, है ना, वो तो ऐसे ही बोलेगा कि हमारे को खाने को नहीं देते, ये नहीं। हर एक बच्चे का अपनी डाइट है, खाइयो भाई अपने। मैं बोल सकती हूँ भाई अपने बादाम रगड़ ले, अभी रोटी बन गई इसमें तड़का लगा ले, ये दूध आ गया है दूध गर्म करके पी ले, मैं दही जमा दूंगी, लाओ भाई। मैं बोल ही सकती हूँ, लेकिन बच्चे को अपना पता रहता है मैं कितना दूध ले रहा हूँ, क्या मैं बादाम पी रहा हूँ, क्या मैं तड़का घी खा रहा हूँ, सब बच्चों को पता रहता है। अब अपना सब बच्चे अब अपना खाते हैं, सबके अपने अलग डाइट होती है सबकी। कोई थोड़ा खा रहा है, कोई ज्यादा ले रहा है, कोई कम दूध पी रहा है, कोई ज्यादा पी रहा है, कोई दही ज्यादा खा रहा है, सब बच्चे को अपना पता होता है। लेकिन फिर भी कईयों की मदर इंटरफेयर करती है ना। जहाँ हाँ पेरेंट्स जी। का ज्यादा इंटरफेयर है ना, वहाँ ज्यादा परेशानी है। उन्होंने वो अपने बच्चों को ये नहीं ज्यादा कहते कि भाई आप परेशानी अपने होती है। करियो, अपने बच्चों को हमने तो देखती नहीं है। कई चीजें लगा लगा के देख ली, रूल बदल बदल के देख लिए। धुले कपड़े देते हैं तो बोलते हैं जी हमारे कपड़े तो बाद में धुलते हैं, मैले रह जाते हैं। गर्म पानी करते हैं, एसी हॉस्टल हमारा, अगर किसी को बोल दें भाई ये इतना बड़ा एसी चलता है यार, उसका बिल ही दे दिया करो, थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर देते हैं, उससे भी परेशानी आती है। तो अब मैंने सोचा भी अब ना तो एसी का चार्ज भी नहीं लेना, कपड़े भी नहीं धुलाने, भाई मशीन दे दी धो, और गर्म पानी का भी किसी से कुछ नहीं लेना। कोच का पैसा लगता है, टोटली जो पैसा लगता है मेरा लगता है, किसी से बिल नहीं लेते, कोचिंग का पैसा नहीं लेते, किसी से हॉस्टल का नहीं लेते, फ्री कोचिंग देते हैं, फ्री। जिसके पास डाइट नहीं उसको डाइट भी फ्री देते हैं। कुछ बच्चों को मैंने यहाँ फ्री रखा जिनका सब कुछ मैं करता हूँ, जिस आदमी का टोटली सब कुछ मैं करता हूँ वो भी नुक्स निकालता है, और पेरेंट्स निकालता है जिसने एक रात भी हमारे पास नहीं काटी। किसी एक दूसरे की सुन के बोलते हैं जी हमारे बच्चों को तो कम दे दिया, हमारे बच्चों को तो बासी दही दे दी है, हमारे बच्चों को तो ऐसे दे दिया। वो करते हैं जिन्होंने रूल रेगुलेशन में रहना नहीं है, जिन्होंने पहलवानी करनी है। मेरा बच्चा भी रहता है, पटियाला रहता है, हम जाके ये भी नहीं देखते क्या खाता है क्या पीता है, कभी मिलते नहीं, कभी लेके नहीं आते, कभी फोन नहीं करवाते, वहीं रहना है, वहीं पहलवानी करनी है। तो हम भी एक ओलंपिक की आस में बैठे, हमें मेडल देगा बच्चा, ओलंपिक का मेडल नहीं देगा, अपना शौक पूरा कर रहे हैं। शौक तो पूरा कर रहे हैं ना, लोग नशे में पैसा लगाते हैं, हम तो अच्छे काम के लिए पैसा लगा रहे हैं। कोई ये तो नहीं कह सकता, भी बच्चा भी नहीं कह सकता भी मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे जोर नहीं लगाया। हम अगर हम गलत चीज पे पैसा लगाते हैं, अच्छी चीज पे भी तो लगा सकते हैं, शौक पूरा कर रहे हैं। जी 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 जी। तो इसलिए ये कोशिश रहती है भी एक बच्चा अगर पेरेंट्स की इंटरफेयर ना करे ना ज्यादा, और बच्चे की बात ना सुने। जो पेरेंट्स अपने बच्चे के मुंह में फंस गया, मेरा भी एक बेटा है एक बेटी है, अगर ये इसकी माँ भी बोल रही मेरा तो एक ही बेटा है, दिवाली पे बुला, होली पे बुला और हर हफ्ते बुला, तो हमारा तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। अगर ये बोलेगी कि नहीं क्या जरूरत है, यही बोलती है क्या जरूरत है इसकी, हम भी बोलते नहीं क्या करेगा यहाँ जी जी, वही रहे, तब जाके पहलवानी होती है। कोई घटना चेते आਉਂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ हाँ जी, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਰ ਹੀ ਜਿੱਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਕਿੱਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਐਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਚੋਟ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, बिल्कुल जी। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ भी तो कुड़ियां ने। नहीं सर देखो अब आप हमारे साथ तो एक नई घटना हुई है, अभी अभी हुई एक है, हफ्ते पहले हुई है। बच्चा यहाँ रह रहा, जिस बच्चे को अपना दूध भी गर्म करने का नहीं, और वो उसके पेरेंट्स उसको सोचते पता नहीं क्या हुआ, हमारा बच्चा तो कितना दुखी है, दूध भी हम गर्म करके दें, उसकी दही भी जमाए, उसको पिलाएं भी हम, और फिर भी पेरेंट्स सोचता है ओहो हमारा तो बच्चे को फलानी चीजें नहीं दे रहे। अरे इतना ही है तो अपने बच्चे का कर, बच्चे को बोलो ना अपना करे,
उसको दूध उठाए भी, धरे भी, दही भी जमाए, पिए भी। ये तो बच्चे को बताते नहीं भी तू अपना दूध क्यों नहीं करती, अपना देखती क्यों नहीं है, ऊपर से दूसरों में और कमी निकाल देते हैं। और ये एक तक नहीं सीमित रहता, फिर फोन करके दूसरे को कहती है वो, दूसरे के पेरेंट्स को प्यार करते, तुम भी हटा लो, तुम भी वहाँ से। हटा लो। लेकिन ये जब अभी नहीं हमारे करना मुंह पे है। कुछ नहीं, हमारे मुंह पे तो हाँ आप जितना करते हो वो तो है, ऐसा कोई भी नहीं करता, लेकिन पीछे से क्या, कुछ भी नहीं। और उसको ये पता है, और दूसरों को बोले कि बताना नहीं, मैंने तेरे को कुछ बताया, अगलों को मत बताना, कदम हमारा नाम आ जाए। और ये नहीं पता अगला बता देता है। मतलब ये है, अभी हमारे पास एक बच्चा रहता था, सोनीपत का ही रहता था, 2 बच्चे रहते थे जी जी। और उसके पेरेंट्स ने हमें बताया भी नहीं, बच्चे को लेने आ गए। हमारी एक आदत है ना, तो हम किसी की चमचागिरी करते हैं, एक ही असूल है, चमचागिरी नहीं करते जी जी, ना जी हजूरी करते हैं, जी। कर्म करते ना हैं। बताया ना कुछ और सर, आगे चुप करके सामान बांधने बच्चे को लगे। वो सामान बांधने लग गए। फिर पेरेंट्स साहब फादर आज लेके जाना, ले जाओ भाई, अरे अब जी अब मम्मी इसको आए तो आईलेट्स कोई- कराएंगे, पढ़ाना नहीं है, मतलब गेम नहीं कराना, आईलेट्स कराएंगे, ठीक है ले जाओ भाई, कोई बात नहीं। उसके बच्चे ने 2-3 बच्चों को तो जाते जाते गुमराह कर दिया। और फिर पेरेंट्स ने ग्रुप से नंबर लेके उनके दूसरे के पेरेंट्स को फोन किया, अब तुम भी हटा लो, वहां तो कोच डाइट नहीं देता, ऐसे करता है, अपने बच्चे की तरफ ध्यान देता है, ये करता, अभी ताजी घटना है जी, ये करता है। और वो ले गए, फिर एक परिवार और भगा दिया, फिर एक बच्चा और बहका, मतलब 4-5 बच्चों को बहका दिया, और एक फैमिली को और बहका दिया, उस फैमिली को ही बहका दिया जिसका पढ़ाई से लेके, लत्ते कपड़े से लेके, जूते चप्पल से लेके, रोटी पानी से लेके सारा खर्चा मैं करता हूँ। उससे क्या मांग लिया, बच्चा तो मांग गया ना, टोटली खर्चा मैं करता हूँ। वो पेरेंट्स को ही बता दिया भी आपके बच्चे को तो अच्छी डाइट नहीं देते, अच्छे मैं अच्छी दूं चाहे माड़ी दूं, आपसे तो नहीं मांग रहा ना। तो वो क्या करते हैं, वो अपना कर्म भोगते हैं, और उनको इस चीज का कर्म भोगना पड़ेगा। इस चीज को नोट रखना आप, कि जो किसी की बच्चे को गलत संगत लगाएगा ना, चाहे मैं भी हूँ जी जी, अगर मैं किसी के बच्चे को गलत संगत लगाऊंगा तो परमात्मा मेरे को बख्शेगा नहीं, जी जी, और फिर हम परमात्मा से अपने बच्चों की आस नहीं रख सकते। जी जी। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो दूसरे के बच्चे को बहका देते हैं और आप बच्चों की बातों में आ जाते हैं। जी जी जी। जिस बच्चे को 7-8 महीने हुए हैं और वो हमारे पास से 2 स्टेट खेल गया, 2 स्टेट खेल गया, और 6-7-8 महीने में कितना बड़ा पहलवान बना दूंगा, खड़ा होना भी नहीं आता। 2-3 साल तो कुश्ती के लिए खड़ा होने में लग जाते हैं, कोई शक नहीं। और वो सोचते हैं भी 2 महीने में ओलंपिक से मेडल लेके आए, तो वो दूसरे के बच्चों को ही बहका देते हैं, यहाँ तो ऐसे नहीं होता, जोर नहीं कराते हैं, ये नहीं कराते। जिसको पेन पकड़ना नहीं आता उसका पेपर दिला देंगे, जिसको कुश्ती के लिए खड़ा होना नहीं आता उसको कैसे ओलंपिक खिला देंगे। जो बच्चा खुद का इंटरेस्ट दिखाएगा, ज्यादा दिल से ट्रेनिंग करेगा, कोच से अलग करेगा, कोच ने 4 घंटे कराई वो 8 घंटे करेगा, जब ओलंपिक से मेडल आएंगे। कोई सोचे भी मैं बेड में लेट के तो जादू तो अपने बच्चों को लगा दूं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वो पेरेंट्स किसी ना किसी तरीके से दूसरे के बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। जी जी, जिसको अर्जाना परमात्मा के दरबार में भगतना पड़ेगा उसको। जी जी जी। सवेर ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਕੋਚ ਦਾ सब शेड्यूल की रहता है? सुबह जी 3 बजे उठते हैं, सुबह उठकर तो गर्म पानी होता है, बच्चे से भी गर्म पानी सर्दी पीते उठ जाते बच्चे? हैं। बिल्कुल जी। मारते नहीं साला? हाँ, एक आवाज लगाने की जरूरत है, उठ जाते हैं सभी। क्या बात है। हाँ जी, उनको 5 मिनट पहले आँख खोल के देखने लग जाएंगे, टाइम तो नहीं हो गया, कभी लेट तो नहीं हो जाएंगे। मैंने सब उठ जाते हैं, उठते हैं सब गर्म पानी पीते हैं, फिर अपने फ्रेश वगैरह होके सब अपने प्रैक्टिस के लिए तैयार होके 3:20 पे 3:15 पे ऐसे थोड़ा फ्रूट आ जाते हैं। तब फ्रूट खाते हैं सभी, जिसको जो अच्छा लगे, 1 खाओ 2 खाओ, कोई मना ही नहीं है, जितना मर्जी खाओ। अपना खा पी के प्रैक्टिस पे आते हैं, प्रैक्टिस 5-5:30 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद दूध पानी पीते हैं, कोई लड्डू वगैरह गला रहा है, कोई गूंद खोआ, जो कुछ भी जिसके पास अपना खाने का सामान है वो खाते हैं, दूध पानी पीते हैं, फिर 1 घंटे के लिए सो जाते हैं। जी जी। फिर 6:30 बजे फिर उठते हैं वे, फिर 6:45-7 बजे फिर अपने मैट पे आ जाते हैं। जी। फिर 9 बजे तक फिर प्रैक्टिस करते हैं,
उसके बाद नहा धो के इतना उनका टिफिन पैक कर देते हैं, उनका खाने के लिए अलग, ये खा के जाना है, ये स्कूल लेके जाना है, वो भजते भजते अपना खा पी जाते हैं और अपना टिफिन ले जाते हैं। जी जी जी। आके फिर वे अपना शेक वगैरह पी के फिर वे सो जाते हैं 1-1.5 घंटा। उसके बाद उठ के बादामों पर बैठ जाते हैं, जी जी फिर वे बादाम रगड़ते हैं, फिर प्रैक्टिस का टाइम हो जाता है 4 बजे, फिर वे प्रैक्टिस पे खड़े होते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद फिर शाम को रोटी पानी खाते हैं। 2022 शुरू किया सी हाँ जी। 2022 15 अप्रैल अप्रैल में आए थे। 8 अप्रैल ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी, हाँ जी। ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ हाँ ਕੀ जी। ਖੱਟਿਆ? इत्थे हमारा एक बच्चा तो नौकरी लग गया। वाह क्या बात है। हाँ जी, हम्म। खेलो इंडिया में, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में उसके मेडल हैं, नेशनल में मेडल है, मेरी बेटी का नेशनल में मेडल है। क्या बात है। और ज्यादा नहीं तो कम से कम भी 70-80 मेडल हमारे स्टेट के हैं 2 सालों में। क्या बात है। हाँ जी, और डिस्ट्रिक्ट के मेडल हैं और काफी बच्चों की परफॉर्मेंस वैसे भी कंपटीशनों में जाते रहते हैं। वैसे भी उधर है। भी बेटी मेरी पंजाब में बाल केसरी बनी थी जी। मननाना में। वो खिताब है 2 सालों में ही है। और हमारे काफी बच्चे ने जिन्होंने स्टेट पार्टिसिपेट किया है और 5-7 बच्चे हमारे नेशनल में गए हैं 2 सालों के अंदर। क्या बात है। हाँ जी, अभी मेडल भी आए हैं, 2-3 के मेडल आए हैं, कुछ का पार्टिसिपेट है, लेकिन 2 साल हुए हैं। 5-4 साल में हमारे बच्चे बेजोड़ तगड़े हो जाएंगे। इतना समय तो लगेगा 5 साल, फिर बेजोड़ तगड़े हो जाएंगे। जी। 5-7 बच्चों से तो जो रेगुलर लग रहे हैं, जो हमारे पास, उनको तो जल्दी उम्मीद है, अभी जल्दी ही मेडल देंगे। अब एक वजन में तो हमारे ऐसे था स्टेट में, हमारे 2 बच्चे एक वेट में थे, एक फर्स्ट था एक सेकंड था। जी जी। हाँ, ऐसे भी था। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ हाँ जी, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ हाँ जी, ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪਰੋਸ ਸਕੀਏ, जी, ਅੱਖਾਂ ਚੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। जी, जी, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाँ जी। ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬਾਰ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੀਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਰੀਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ बिल्कुल। ਗੰਦ ਮੰਦ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। हाँ जी, हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ? साढ़े को एक हमारे दोस्त आए थे, रुपेश जी दैनिक भास्कर से, सबसे पहले वे थे, जी उससे पहले कोई नहीं आया। जी। उसके बाद उनकी न्यूज देख के दूसरे न्यूज वाले आए थे और अब आप आए हो। जी। नहीं तो उससे पहले हमें किसी ने ना प्रमोट किया, हम्म। ना हमारे पास कोई आया, ना कोई दानवीर सज्जन आया हमारे पास, तो ना कुछ ये भी मदद करने वाला ही आया कोई। इस तरह का हमारे पास अभी तक कोई नहीं आया। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ हाँ जी, ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ, हाँ जी, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हाँ जी। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੂੰਗਾ। भाजी फिर या तो मैं ट्रेनिंग पे फोन नहीं उठाता, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ नहीं मैं एक तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਚ training- ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ, हाँ जी, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਤੁਸੀਂ। अच्छा जी। मेरा ना असीदा जी गुमनाम जी ही है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕਰ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਸੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਫਲਾਨਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ हाँ ਹੁੰਦਾ जी, हाँ जी, ਵੀ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਕਹਿ ਕੇ ਆਓ हाँ ਵੀ जी। ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। एक तो भाजी मैं प्रैक्टिस टाइम पे फोन नहीं उठाता किसी का भी, जी। फोन को साइलेंट करके साइड रख देते हैं, उठाते ही नहीं है। जी एक कहीं ड्यूटी में बिजी हो जाते हैं, कई बार जी। समय नहीं मिलता अपने लिए, खुद के लिए समय नहीं है, तो इसलिए कई बार फोन का पता नहीं लगता। मैंने फोन आपका रात को देखा, जब रात को देखा तो फिर मैंने आपको, फिर गोलू को साहब फोन आया, पहलवान जी होगा, अभी ऐसे ऐसे मेरे दोस्त आपको संपर्क कर रहे फोन, फिर मैंने देखा भी, फिर मेरे को कोच साहब का फोन आया, फिर मैंने आपको मैसेज छोड़ा भाजी, मैं राती सवेरे गल करूंगा। जी जी। राती में बिजी। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਵੀਰ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇ? ज्यादा से ज्यादा तो नर्सरियां चाहिए, भी सरकार ज्यादा से ज्यादा नर्सरियां खोले, जी। ज्यादा से ज्यादा कोच लगाए, जी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 8-8, 10-10 नर्सरियां हो, हम्म। और ज्यादा से ज्यादा कोच भर्ती करे, कोच लगाए, जी। और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करे स्पोर्ट्स के लिए, कोई भी गेम है वो, उसमें कोच कोई भी है। जी जी। हरियाणा इसलिए आगे है हमारे, उधर नर्सरियां बहुत ज्यादा है।
पहलवानी दी बहुत ज्यादा है। जहां मर्जी आप एक एक डिस्ट्रिक्ट में 10 20 20 50 50 नर्सरियां होंगी, इतनी नर्सरियां हैं। और जहां छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग दी जाती है, ज्यादा कोच भर्ती करे जाते हैं। एक साल में 100 से 150 मैट खरीदा जाता है जी। सरकार। कोई जैसे कोई किट दे दे, कोई मैट दे दे, इक्विपमेंट दे दे, उससे ना कोई भी गेम है, किसी भी गेम का जैसे भी ग्राउंड ज्यादा बनाए जी। तो इससे गेम का भी ज्यादा, नशे से भी बच्चे दूर होंगे और गेम का स्तर भी ज्यादा ऊपर जाएगा अपना। जी। अगर सरकार नर्सरियां ज्यादा बनाती है, कोच ज्यादा रखती है और हर तरह का उनको डाइट का है, ट्रेनिंग का है, कोई स्टेडियम है, इस तरह की उपराले करे तो अपना पंजाब का स्तर पहले भी बहुत अच्छा था जी। कुछ समय से डाउन चल रहा है, अब फिर दोबारा फिर अच्छा हो जाएगा। हमारे पास ही 60 बच्चे आते हैं, 60 के करीब बच्चे आते हैं हमारे पास। जी जी जी। एक छोटा सा उपराला शुरू किया है और कोशिश कर रहे हैं अभी इसको ज्यादा बड़ा करेंगे जी। और सरकार और मदद कर दे तो फिर तो भाजी और ज्यादा बड़ा इन्ना हो जाएगा। कुड़ियां च रहंदे होया मैं इस गल नूं बाखूबी जानदा। बेशक मुंडिਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बिल्कुल जी सही है। ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ? ਮਨੀਸ਼ ਫਗੌਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਘਰੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਸੁਣੋ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬਸ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਜਿੱਤ ਗਈ। हाँ जी हाँ जी। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਜੋ कुड़ियाँ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਚਾਹਣ, ਸਪੋਰट्स ਚਾਹਣ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ देखो जी गेम कोई भी करो, गेम बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, जी है ना। गेम से एक तो उनका खाना पीना अच्छा रहेगा, जी एक वे डिसिप्लिन में रहेंगी, जी एक उनको हर एक चीज का पता लगेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसके साथ हमें कैसे रहना है, क्या करना है। सबसे जरूरी है डिसिप्लिन। और अगर गेम करता है वो बाहर कंपटीशनों में भी जाएगा, कहीं कुछ ना कुछ देखता है, सीखता है, जी 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 बहुत जरूरी है। अगर डाइट अच्छी रहेगी तो वो अपने आप ही तगड़ी हो जाएगी। और लड़की तो जी 2 घर चलाती है, एक का एक सोरा, 2 घर चलाती है। लड़की का तगड़ा होना तो बहुत जरूरी है। जी जी अगर जिसकी लड़की तगड़ी होगी उसकी 2 पीढ़ियां सुधर जाएंगे। और बच्चा गेम करता है तो हार जीत से ऊपर उठता है। जो हार जीत से ऊपर उठता है वो फिर जैसे छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, छोटा पेपर में नंबर कम आए तब डिप्रेशन में चले जाते, कोई और कारण हो जाता है। अगर गेम करता है तो हम इन हार जीत से, इन चीजों से ज्यादा ऊपर उठ के आते हैं। और ये जहां हम बैठे हैं पंजाब की धरती तो बहुत तगड़ी है और यहाँ बहुत तगड़े तगड़े खिलाड़ी रहे, ज्यादा तगड़े खिलाड़ी रहे। अगर माँ प्यो साथ दे ना जी जी तो दोबारा वही लहर आ सकती है। अगर माँ प्यो और सरकार साथ दे, स्कॉलरशिप लगाए बच्चों को, हमारे उधर स्कॉलरशिप बहुत मिलती है, यहाँ नहीं मिलती। कोई किसी भी तरह की स्कॉलरशिप नहीं देते यहाँ पे, कोई डाइट नहीं देते, नर्सरी नहीं देते। इस चीज का बहुत ज्यादा वो है। अगर कोच ज्यादा रखेंगे तो गेम ज्यादा बढ़ेगा। जी 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 और गेम ज्यादा बढ़ेगा तो बच्चा, हर एक युवा नशे से दूर होता चला जाएगा। जी। एक हमारे इधर बाहर का कल्चर बहुत ज्यादा है, जैसे भी बच्चा +2 करके बाहर चला जाता है। जो टैलेंट है, अगर हमने 60 बच्चे को कोचिंग दे रहे हैं, इनमें से 20-30 बच्चे चले गए जिसके पास टैलेंट है, तो जो टैलेंट बाहर चला जाता है तो फिर दोबारा उस चीज को तैयार करने में बड़ा मुश्किल आती है, बहुत मुश्किल आती है। बहुत अच्छा। अगर हम अपने, कोशिश ये है भी हम अपने बच्चों को कभी बाहर नहीं भेजेंगे, कभी नहीं। हम तो इस रेसलिंग में ही भविष्य लगा रहे हैं, इसी में भविष्य बनाएंगे। और अगर जो जी जान से यहाँ लग के मेहनत करता है जी तो 100% उसका भविष्य बनता है। जी 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 इतना अच्छा खाना है यहाँ, इतना अच्छा खाना, बहुत अच्छा खाना खाते हैं जी जी बहुत अच्छे लोग हैं। अगर इस चीज को और कर लेंगे, सरकार भी मदद करने लग जाएगी और बच्चे, पेरेंट्स भी, अगर माँ सोच लेगी ना बच्चे को गेम करानी है जी तो कोई दूर नहीं है, खासकर लड़कियों को। पहली इंटरव्यू इकट्ठे पहली जी किवें लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हैं? बहुत बहुत बढ़िया अच्छा जी, लग रहा है। ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? बहुत हाँ जी, बढ़िया जी, बहुत बिल्कुल। बढ़िया। ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਸਫਰ ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣਿਓ ਕੋਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਬਾਰੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਖੱਤ 'ਚ ਕੁਛ ਪਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕੈਨੌਰ ਦੀ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਸੁਭਾਸ਼ ਪਟਿਆਲੇ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੋੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੱਲਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਥੀ ਬੰਨਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੀ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ।